हेलो एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्रिकेट किड टीवी। आज हम रिव्यू करेंगे मैच नंबर 60 जो कि खेला गया था दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में, जहाँ पे जीटी वन बाय 10 विकेट्स। उन्होंने 205 बनाए और प्लेयर्स प्लेड रियली वेल लाइक साई सुदर्शन एंड शुभमन गिल। की आवाज नहीं आ रही है। कट 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 के आ रही है। Hmm. अभी ठीक है सर? ओके नाउ? Now it is better. Yeah. Go ahead. Go ahead. नारायण सर, यू कैन स्टार्ट गिविंग योर। हाँ अभी ठीक है. Yes. Yes. So there were two rain-washed matches. One match was abandoned, and yesterday there was a whitewash match actually. Very well said. Oh my God. Absolutely. Absolutely. What do you say about yesterday? So Gill won the toss and opted to bowl, which is happening now on 90% of the tosses in this tournament, and put DC on the batting side. And so DC is at a very delicate position after this loss yesterday. देखा जाए तो, no? So after this match, they have 12 matches, 6-1, 5 loss, 13 points, fifth on the table, and NRR of point, 0.260. Correct. The best part was that Rahul scored the fifth century of the tournament, the century after Vaibhav's century, a big gap, for that century. And this time he opened the innings after a while also. He has not been opening the innings. So he carried his bat throughout, 112 not out. But what I understand is that this 199 was a bit short, should have been 20-25 runs short. Like in the way Sai and Gill played, possibly वो 25 run भी extra बना भी देते actually. But after the end of the first innings, I thought 199 was 20-25 runs short actually. So बाकी के जो प्लेयर्स हैं, डीसी वाले, they were ably, Rahul was ably supported by Porel, Aksar and Stubbs, but they scored 20-25 20-25 among themselves. But अगर थोड़ा सा ही अच्छा और खेलते तो अच्छा होगा। और ये भी लगा कि राहुल ने अपनी इनिंग्स पहले स्टार्टिंग में बहुत स्टेडी करी थी और बाद में उन्होंने एक्सेलरेट किया है। सो पॉसिबली अगर स्टार्टिंग से एक्सेलरेट करते तो ये वापस शॉट वगैरह हो जाते हैं, वो देख लेते हैं अपने समझ में। सो दे स्कोर्ड 199 फॉर 3। जीटी के जो बॉलर्स हैं, सिराज 37 फॉर नो रन्स 4 ओवर्स में, राबाडा 34 नो रन्स दो ओवर के अंदर ही, प्रसिद्ध अगेन 40 रन्स इन 4 ओवर्स 1 विकेट, एंड राशिद 32 again no wicket, and Sai Kishore also was hit very hard, 47 with 1 wicket देखा जाए तो ये जो one area which GT has to now, GT top of the table, which they have to look upon is for the balance of the tournament is their fast bowlers. Siraj, Rabada, Prasid, they have to perform. Arshad was played a very tidy spell, 2 overs, just gave 7 runs and took 1 wicket, so that averaged out a bit basically. एंड आई वाज सॉरी दैट माय फेवरेट समीर रिजवी को बैटिंग नहीं मिली कल एक्चुअली। उसको लिया लेकिन उसको खिलाया नहीं। सो आई वाज अ बिट सामने देखें व्हाट हैपेंड। जीटी स्टार्टेड सुपरबली वेल, both the players, the openers, throughout the inning they played out. Sai played the sixth, scored the sixth century of the match. So there were two centuries, one on this particular match itself. Rahul on one side and Sai on the other. 61 balls, 12 hits to the fence, four above, four sixes. Captain Gill excellently well, 93 not out, 53 balls, three fours and seven sixes. In fact, when he scored up to 50, he had no fours actually. They're all sixes. उसके बाद में उन्होंने किए थे। सो दूसरा है कि इनका ये सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर जीटी है फॉर द फर्स्ट विकेट। हाईएस्ट भी सेम पैर का ही है, 210 वर्सेस सीएसके इन 2024 लास्ट ईयर इटसेल्फ देखा जाए तो। सो एंड हिट थ्रू आउट द
स्टेडियम सब जगह पे देर गुड अम्ब्रेला, सब जगह चौके छक्के मारे हैं, एंड वेरी एक्सीलेंट, स्किलशिप ऑफ क्रिकेट फॉर एनी लर्नर शुड हैव सीन दिस मैच, प्लेइंग these two batters playing over. डीसी ने 6 बॉलर यूज किए, अक्सर खुद, नटराजन, मुस्ताफिजर was a replacement for Stark, Chamira, Vipraj और कुलदीप. Except Mustafir, all had been hit for above more than 9 runs average देखा जाए. नटराजन went for 16 के एवरेज, ये टोटल 49 रन्स उन्होंने दिए हैं. तो स्टार्क की कमी उनको बहुत महसूस हुई है इस मैच के अंदर देखा जाए तो. और अभी डीसी के लिए एज आई मेंशन नेक्स्ट 2 मैच जो हैं वो एमआई और पंजाब हैं. पंजाब एमआई वाला जो मैच है डीसी वाला, दैट विल बी द नॉकआउट मैच. डीसी रहता है कि एमआई रहता है वो पता रहेगा. और जीटी के लिए जो नेक्स्ट मैचेस हैं वो बहुत फॉर पीपल एलएसजी और सीएसके है. तो ये चांसेस है कि वो 22 रन देके टॉप ऑफ द टेबल वापस 18 है अभी, 22 रन, चार दोनों मैच जीत के 22 रन पे आ सकते हैं. निखिल. Yeah, I think two couple of it's not many statistics, but two, I would say two captaincy decisions I would question both the sides. One, Arshad Khan, 2 overs, 7 runs, and I think 1 wicket. I यस. cannot for my life of me understand why he was not given his full quota of 4 overs, right? जब आपका करेक्ट. बॉलर इतना अच्छा बढ़िया बॉलिंग करता है और 2 ओवर में 7 रन दे के 1 विकेट लेता है, आई थिंक दैट इज दैट 15-20 रन डिफरेंस नारायण दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि उन्होंने जो अपने 12 गेंदों में सिर्फ 7 रन दिए, और अगर आप 10 का एवरेज पकड़ते या 11 का एवरेज पकड़ते पर ओवर, तो 22 होना चाहिए था, तो 15 रन तो उन्होंने ही बचा दिए, बाकी अगर 11 का एवरेज पकड़ते हो आप. तो मुझे लगता है वो जो 2 ओवर उनके थे वो बहुत ही बढ़िया थे और बहुत ही अच्छी तरह से, दैट इज वेयर राहुल स्लोड डाउन. जो आपने कहा ना, राहुल ने स्टार्ट शुरुआत की स्लो की, आई करेक्ट. थिंक वो बॉलर की वजह से थी. बॉलर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहा था. तो बट क्यों उसको कि ना, सॉर्ट ऑफ मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कप्तान के शूज में खड़ा रहूँ और सोचूं कि मैं क्या कर रहा हूँ. आप पहले की मैचेस में देखिए तो साई किशोर के साथ ये होता था. साई किशोर को आप 16 ओवर में लाते थे, 16 ओवर में लाते थे, 2 ओवर देते थे, सामने वाले 200 210 रन बनाते थे. आप सोचते थे, क्यों हो रहा है, जाकर जो बेस्ट बॉलर है उसको आप बॉल नहीं कर रहे हो. तो ये इनकी तरफ से फ्रॉम द साइड ऑफ जीटी. ऑन द डीसी साइड आउट, दैट सेकंड ओवर वाज अ बिग ब्लंडर. I think when you start with a spin attack and you say that Akshar यस. says, I'm coming in now, why half measures? And then even if half measures, if you want to spin pace, why bring in a rusted player against two of the best players of the tournament? आपको पता है कि करेक्ट. ये दोनों आग आग लगा रहे हैं सारे पहले से यस. इतने मैचों में. तो यू हैव टू ब्रिंग योर बेस्ट बॉलर, राइट? योर बेस्ट बॉलर वाज प्रोबेबली द करेक्ट. रिप्लेसमेंट फॉर स्टार्क, वाज मुस्तफिजुर यस. रहमान. मुस्ताफिज. और और चलो आपको चमीरा से बॉलिंग करवाने, या कुलदीप को लेके आइए, या विप्रज को लेके आइए, जिन्होंने अपना, और ये जो नटराजन ने इतने मैचेस खेले नहीं है इतने समय से, मैच करेक्ट. प्रैक्टिस नहीं है उनको, उनके वो टेम्परामेंट अभी तक लाना मुश्किल होता है. हाँ. तो वो जो हाँ. सेकेंड ओवर 20 रन, आपने पूरा हाँ. मोमेंटम मोमेंटम दे दिया ना सामने वाले के खत्म हाथ कर में. देगा. यस. अगर यस. आप पहला वाला ओवर देखेंगे अक्षर का, तो पहले 5 बॉल में उन्होंने 5 रन दिए. ठीक है, बराबर है. वेरी नाइस, राइट. बट सिक्स बॉल इज अ लूज बॉल, इट वाज हिट फॉर ए छक्का. सिक्स, तो 11 रन हो गए. बट नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि आपके 5 रन में 5 गेंद में सिर्फ 5 रन दिए थे, और करेक्ट. वो बहुत ही सराहनीय था. तो आपको करेक्ट. सेकंड ओवर जो था ना, बहुत टाइट रखना था, और आपने दे दिया हाँ. नटराजन को और 20 रन बन गए. तो सामने जो, हाँ. जब एक बार मोमेंटम आता है ना साई जैसे प्लेयर में, तो बात खत्म हो जाती है. देन तो ही जस्ट यस. यस. फ्लोज, लाइक अ करेक्ट. वैभव, लाइक अ वैभव या ही या 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 फ्लो में आ गया, आपने दे दिया उसको चांस कि भैया तू खेल, तो फिर वो पीछे नहीं देखता है. तो मुझे लगता है सेकेंड ओवर अक्षर समवेयर वेंट रॉन्ग in deciding to give the ball to Natarajan, and the match was lost over there, because you gave the advantage to the opposite team, and then by the time it was 5 overs, 6 overs, 70 runs, 80 runs, मैच खत्म हो गई थी वहीं पे, और आपका जो मोरल था वहीं खत्म हो गया था. तो बैड फॉर डीसी, आई थिंक गुड फॉर मुंबई. इफ डीसी had won yesterday, probably Mumbai would have had a lot to worry about. लेकिन क्योंकि डीसी कल हारी, मुंबई चैन की सांस ले सकती है. उनको सिर्फ डीसी को हराना है. डीसी को हराएंगे तो दे आर थ्रू टू द क्वालिफायर्स. और मुझे लगता है डीसी, मुंबई जिस मोमेंटम में है, अपवर्ड मोमेंटम में है, और डीसी डाउनवर्ड मोमेंटम में है, तो उसमें मुंबई के चांसेस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं डीसी के सामने. तो कल जो मैच है उनका, मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है दोनों टीम के लिए, और मुंबई शायद हैज़ द अपर हैंड.
But yesterday's match disappointing from a DC perspective. You know, you let somebody make 205 for no loss. You can't take a wicket. You have to sit back and think what went wrong. क्या and you have good bowlers. You have कुलदीप, you have विप्रज, you have अक्षर. It's not that ऐसा नहीं है कि आपके पास बॉलर ही नहीं है. अच्छे बॉलर हैं आपके पास. शमीरा है, मुस्तफिजुर है. तो क्या गलत हुआ? क्या सामने वाला बल्लेबाज इतना बलवान है, इतना इतना सक्षम है कि आप उसको आउट नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते? सोचने वाली बात है. और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जो एक जो जज्बा आना चाहिए डीसी की टीम में वापस, वो बहुत जरूरी है. जीटी ऑल फुल मार्क्स टू देम. बट उनके साथ वही होगा शायद फाइनल में, अगर वो फाइनल में आते हैं, जो उन्होंने राजस्थान के साथ किया था 2023 में. नारायण, इफ यू गो बैक टू 23, राजस्थान रॉयल्स ने इसी तरह फाइनल में पहुंचे थे. पहले 3 बैट्समैन खेलते थे, जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन. 3 प्लेयर खेलते थे, सब मैच जीतते थे, फाइनल में जाके लड़खड़ा गए और जीटी को दे दी मैच चैंपियनशिप. जीटी आज उसी पोजीशन में है. पहले 3 ही प्लेयर्स खेल रहे हैं और कोई नहीं खेल रहा है. अगर फाइनल में कहीं मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो गया तो उनको तकलीफ हो सकती है. 80% स्कोर कर रहे हैं जीटी वाले ओपनर तीनों. 1 2 3 है ना, 80% स्कोर कर रहे हैं, दिखा जाए. And that is never good. That is, look at the Punjab. If you compare the Punjab win with that of the GT win, I would think the Punjab win was a much better win, even though it may have lost 7 wickets, 8 wickets. That doesn't matter. But every area of their team was exposed. Every area of their team was put to the test, and they came out in flying colors. यहाँ तो सिर्फ 2 बंदे खेले, बाकी लोग खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे बुरा खेलेंगे, फॉर्म में है फॉर्म में नहीं है, पता नहीं, कुछ पता नहीं. वो तो डगआउट में बैठ के तालियां मार रहे थे. नहीं, कल आप देखोगे ना तो अरशद ने बॉलिंग के टाइम में डुप्लेसी का विकेट लिया. डुप्लेसी ने 5 रन बनाए 10 बॉल में. यस यस यस. तो उसने उसको जाम करके रखा. तो बाद में अगर पोरेल के ऊपर प्रेशर डाल के अगर अरशद को कंटिन्यू करते ना, तो पोरेल का विकेट ले सकता था, मतलब प्रेशर डाल सकता था, क्योंकि राहुल तो जमा हुआ खिलाड़ी है, नो डाउट अबाउट. Absolutely. ये 199 could have reduced by another 20 on this side instead of that side. yes. तो ये होता है. अभी भी अपकमिंग कैप्टन है तो ठीक है, टाइम ले रहे हैं, समझेंगे. तो ही हैज शोड भाई, मैंने जो भी किया गलती, मेरे बैटिंग देख लो यार. नहीं, और अच्छा ये भी देखो आप, एज इसकी कैप्टनशिप की मान्यता देखो. दोनों ओपनर है, दोनों तगड़े हैं, बट ही स्टिल गिव चांस टू साई मोर. करेक्ट. देखा जाए तो बॉल अक्सर के सॉरी कैप्टन गिल के 53 ही बॉल है, उसके 61 बॉल है. 8 बॉल का ही फर्क है, रन पे ज्यादा फर्क है, लेकिन रोटेशन ऑफ स्ट्राइक अच्छा किया उन्होंने, एंड ही गेव प्रोत्साहन किया उसको. दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग साइंस ऑफ अ कैप्टन. देखा तो अगर इंडियन सिलेक्शन टीम देख रही है उनको एज अ टेस्ट कैप्टन, तो अच्छा देख रही है बेसिकली. एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू कंप्लीटली. तो ये था रिव्यू मैच 60 के बारे प्रिया में. जी मैच 60 का रिव्यू था. और अब जल्दी मिलेंगे प्रीव्यू के साथ विद द नेक्स्ट मैच. डू कीप वॉचिंग आवर चैनल. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर शोज, और क्विज का जवाब जरूर भेजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.